السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، 8th کلاس کی جو ہمارے طلاب ہیں ان کو اس آف لائن کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک پوئم ہے، سمر اینڈ ونٹر۔ یہ جو پوئم ہے یہ پرسی بی شیلی نے لکھی ہے۔ تو یہاں پہ جو اس ڈبے میں لکھا گیا ہے، پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد ان لائنز کو جو ہم نے آج پڑھنی ہے تو آخر پہ ہم آپ کو شاعر کے بارے میں بھی انفارمیشن دیں گے۔ The poet makes a comparison between summer and winter. He draws this comparison with the help of a beautiful image. Summer is presented as bright and joyful. It symbolizes happiness, while as winter symbolizes lifelessness. It was a bright and cheerful afternoon towards the end of the sunny month of June, when the north wind congregates in clouds. The floating mountains of the silver clouds from the horizon, and the stainless sky opens beyond them like eternity. All things rejoiced beneath the sun. The weeds, the river, the corn fields, and the reeds, the willow leaves that glanced in the light breeze, and the firm foliage of the larger trees. تو اس پوئم کا ایک حصہ ہم نے پڑھا۔ تو پہلے میں آپ کو پوئٹ کے بارے میں انفارمیشن دینا چاہتا ہوں۔ تو پوئٹ جو ہیں پرسی بی شیلی، یہ جو شاعر ہیں یہ 4 اگست 1772 عیسوی کو ہورشم، یعنی جگہ کا نام ہے، یونائٹڈ کنگڈم کنٹری کا نام ہے، یہاں پہ پیدا ہوئی اور یہ وفات پائے 8 جولائی 1822 عیسوی کو لیریسی اٹلی، یعنی اٹلی کی یہ جگہ جہاں پہ اس نے وفات پایا۔ ایجوکیشن، تو اس کی ہائر ایجوکیشن جو ہے یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں ہوئی ہے۔ یہ شاعر جو تھا یہ رومانٹک انگلش پوئٹ تھا اور گریٹ لائرک تھا۔ تو اس کی پوائمز جو ہیں ان میں یہ بڑی بڑی پوائمز شمار ہوتی ہیں: دی ماسک آف انارکی، ٹو اے سکیلارک، دی ریولٹ آف اسلام، لوز فلاسفی۔ تو ایک اور یہاں پہ جو نام ہے سمر اینڈ ونٹر ایٹسٹرا۔ اس کے علاوہ بہت ساری اس کی پوائمز ہیں، تو ان میں سے کچھ کے ہم نے نام جو لیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ اٹ واز اے برائٹ اینڈ چیئرفل آفٹرنون، یہ تھی یعنی دوپہر کی چمکیلی اور خوشی بھری، یعنی دوپہر کا وقت تھا، چمکیلی اور خوشی بھری دوپہر تھی، جون کے دھوپ بھرے مہینے کے آخر میں۔ when the north wind congregates in clouds, the floating mountains of the silver clouds. پھر ہوا کیا، یعنی جب شمالی ہوا اکٹھا ہوتی ہے جھنڈ کی صورت میں، یعنی ہواؤں کی یعنی گٹاؤں کی ایک جھنڈ سی بنتی ہے، وہ بھی جو شمالی ہوائیں ہوتی ہیں، یعنی یہاں پہ شمالی ہواؤں کی ایک خاص خاصیت ہے، یہ بہت ساری بارش اپنے ساتھ لاتی ہیں جو انگلینڈ کے موسم میں بہت اثر ڈالتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ جون کا ذکر جو ہوا ہے، جون کا مہینہ جو ہوتا ہے، اس مہینے سے ہی انگلینڈ میں موسم گرما شروع ہوتا ہے۔ انگلینڈ جیسے یعنی اس کے آس پاس والے جو ممالک ہیں، یعنی ان کا موسم گرما بہت ہی الگ قسم کا ہوتا ہے۔ یہ ہندوستان کے موسم گرما سے بالکل الگ ہوتا ہے، یا ہندوستان کے جیسے علاقوں سے بہت الگ ہوتا ہے، کیونکہ اس موسم میں یعنی موسم گرما میں
इंग्लैंड में मध्यम सी गर्मी पड़ती है। ये एक रंगू या रंग भरा मौसम होता है, रंगों से भरपूर मौसम होता है। हरे हरे पेड़ और घास बहुत ही नज़र आती है, रंग बिरंगे फूल और नीला चमकता आसमान नज़र आता है। तो ये इंग्लैंड की खासियत जून के महीने में, जून का महीना बड़ा ख़ास होता है। वहाँ इसी महीने से समर जो है शुरू होता है और इसको हम इंग्लिश समर कहते हैं। अगर आपने आजकल जो मैचेस भी चल रहे हैं इंग्लैंड में, अगर आप उनकी कमेंट्री सुन पा रहे होंगे तो वहाँ पे बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, द इंग्लिश समर। यानी ये इंग्लिश समर होता है। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर जो है, अब वो समर उनका जो है वो जा रहा है, यानी उनसे विदा हो रहा है। तो उसी के बाद यहाँ पे चल रही है, यानी इस दौरान क्या है, शुमाली हवाएं जो है वो इकट्ठा हो जाती है, इकट्ठा होके झुंड बनती हैं उनकी, और साथ साथ में क्या होती है, चांदी रंग, यानी यहाँ पे सिल्वर चांदी रंग के बादल जो होते हैं तैरते हुए पहाड़ों जैसे नज़र आते हैं। यानी कभी कभी आपने भी बच्चों ये नोटिस किया होगा, आपने आसमान पे देखा होगा, तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो बादल हैं ये एक जगह से दूसरी जगह की ओर जा रहे हैं, चल रहे होते हैं, तैर रहे जैसे होते हैं। तो यही सूरत हाल यहाँ पे शायर जो है उसकी, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा भी है, ये कंपैरिजन जो उसने समर एंड विंटर में किया है, ये इसने ब्यूटीफुल इमेजेस के ज़रिए किया है। तो ये भी एक इमेज उसके दिमाग में बनती है कि वहाँ पे जो फ्लोटिंग माउंटेन्स, यानी तैरते हुए जो पहाड़ हैं, वो किसके हैं असल में, सिल्वर क्लाउड्स, ये चांदी रंग के बादलों के हैं। फ्रॉम द हॉरिजन, हॉरिजन उफक को कहते हैं। उफक वो जगह जहाँ पे हमें ज़मीन और आसमान लग रहा है कि ये मिल रहे हैं, शायद ये द एंड है, यानी इसके बाद और शायद कुछ भी नहीं है। यहाँ ये वो जगह है जहाँ पे ज़मीन और आसमान मिल रहे हैं, यानी हमारी नज़र वहाँ तक जाती है। तो हम ये सोच रहे होते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पे ज़मीन और आसमान मिलता है। यानी यहाँ पे इससे क्या, उफक से, और साफ यानी बेदाग आसमान। फ्रॉम द उफक, उफक से, एंड द स्टेनलेस स्किन, बेदाग आसमान यानी साफ सुथरा आसमान। ओपन्स बियॉन्ड देम लाइक इटर्निटी, उनके पार खुल जाता है जन्नत की मानद। यानी उस उफक के पार खुल जाता है जन्नत की मानद, जन्नत की जैसे। ऑल थिंग्स रिजॉइस्ड बीनीथ द सन, सूरज के नीचे ज़मीन पर लुत्फ लेती सभी चीज़ें, जैसे जंगली पौधे यानी वीड्स, रिवर्स यानी नदियाँ जिनको हम कहें, कॉर्न फील्ड्स यानी अनाज के खेत, और यहाँ कॉर्न जो मक्की को ही कहें तो इतना भी ठीक है, और सरकटे यहाँ पे द रीड्स, सरकटे एक किस्म की नर्सल यानी घास होती है, एक लंबी लंबी घास जो पानी के इर्द गिर्द में उगती है, पानी के साथ में उगती है। साथ में ये भी द विलो लीव्स, विलो एक किस्म का पेड़ जो कश्मीर में भी पाया जाता है, जिसे हम बेद कहते हैं, और इसके लीव्स की यहाँ पे उसने इमेज खींची है, दैट ग्लैंस्ड इन द लाइट ब्रीज, हल्की हल्की हवा में जैसे ये बेद के पत्ते जो हैं ये चमकते होते हैं, एंड द फर्म फॉलिएज ऑफ द लार्जर ट्रीज, और बड़े पेड़ों के मजबूत पत्ते, उन पत्ते ही नहीं बल्कि क्लस्टर ऑफ लीव्स, पत्तों के झुंड, फूलों के झुंड, उनके ब्रांचेस जो हैं ये मजबूत पत्ते, ये भी हवा में हिल रहे होते हैं। यानी एक ख़ास किस्म की ये इमेज बनती है। तो इस तरह से ये जो शायर की कंपैरिजन है इस पैराग्राफ में या इस स्टेंजा में हमने ये पढ़ा कि समर के बारे में। समर को यहाँ पे शायर ने कहा इट सिंबलाइजेस हैप्पीनेस, यानी समर जो है खुशी की अलामत है, वाइल एज विंटर सिंबलाइजेस लाइफलेसनेस, विंटर जो है बेजानी की निशानी है, यानी लाइफ जो है मध्यम पड़ जाती है, रुक सी जाती है। तो इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में आगे इसके हवाले से बात होगी। खुदा हाफिज़ व नासिर।